سے ہم اس بات کو سیکھیں گے، 2 گواہوں کا ذکر ہے۔ یہ 2 گواہ کون سے ہیں؟ 11ویں باب میں ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں 4 آیت میں، تو ان 2 گواہوں نے آنا ہے اور ان کے لیے پہلے سے یہ بات درج ہے۔ ایک ایلیا نے اور ایک یوحنا نے۔ ایلیا جو پرانے عہد نامے سے تھا اور یوحنا عارف زبدی کا بیٹا، یعقوب کا بھائی، جسے خداوند عزیز رکھتا تھا، جسے خداوند نے اپنی ماں کا بیٹا بننے کا حق بخشا، اور اس بیٹے کے لیے خداوند محبت رکھتا تھا۔ اس شاگرد کے لیے خصوصاً خداوند کے اندر محبت تھی، اور اس محبت کا اظہار زبدی کے بیٹے یوحنا نے پھر اپنی خدمت کے وسیلہ سے خداوند کی حضوری میں پیش کیا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو رسولوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ خداوند اس زبدی کے بیٹے کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ تو پطرس نے ایک سوال کر دیا یسوع مسیح کے آگے، اور اس سوال کو کر دیا کہ کیا یہ ابد تک زندہ رہے گا؟ تو یسوع مسیح نے اس کو تھوڑا روکا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اس بات سے تجھے کیا غرض کہ جب تک میں نہ آؤں یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ میرے آنے تک ٹھہرے رہے، اور اس بات کو جو ان سے بھید میں کہی گئی ہے اس بات کو سیکھیں گے کہ کیا آیا یہ جو ان سا کویسچن ہوا ہے اس کو آگے جا کے مکاشفہ میں کس طرح سے کھولا گیا ہے، کیونکہ یہ انجیل مقدسہ جو سی ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اور مکاشفہ کی کتاب جو سی بیچ میں درج ہوئی ہے یہ بھی یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، اور یسوع مسیح نے وہ الفاظ اپنے شاگردوں کو دیے ہیں، وہ الفاظ رویا اور نبوت کے طور پر دیے ہیں جن کا ہونا ضرور ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے منہ سے کوئی بھی ایسا الفاظ ارشاد نہیں ہوا جو ہونا ممکن نہ ہو۔ اس لیے ان ساری باتوں کو سیکھنے کے لیے آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی 2 آیت سے ہم 4 آیت مقدسہ تک پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ 2 گواہ جن کا ذکر ہم یہاں پر پڑھیں گے ان کی زندگی کے متعلق آگے خدا کیا فرماتا ہے۔ جی، اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، جی، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ یس، وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گی، یس، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یہاں پر اس بات کو جب ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ خدا اپنے ان 2 گواہوں کو اس زمین پر بھیجے گا، لیکن 2 آیت سے جب ہم نے پڑھا ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کرے گی، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا۔
260 दिन नबूवत करेंगे। 1260 दिन तक वो दो गवाह आएंगे और क्या करेंगे? नबूवत करेंगे, यानी कि खुदा का कलाम सुनाएंगे लोगों को, उन लोगों को जो उस मुकद्दस शहर में मौजूद है, और जो बाहर गैर कौमें है वो उन्हें कबूल नहीं करेंगी और ना ही उन्हें कलाम सुनाया जाएगा। ये 1260 जो उनसे दिन है, ये भी 42 महीने पूरे होते हैं। 42 महीने 1260 दिन। तीसरी बार जो उनसे 42 पूछते हैं, उसमें यीशु मसीह पैदा हुआ है। खुदा से, इब्राहिम से, ठीक है, और फिर उसके बाद यीशु मसीह दाऊद से, वो 42 पुश्तें पूरी हुई। 42 जो सा है, ये उस दिन को मुकर्रर करता है जिस दिन का आगे जाके हम जिक्र सीखेंगे। ये यूहन्ना जो सा था, जब्दी का बेटा, इसको खुदावंद यीशु मसीह ने एक खुसूसी नाम दिया था और उस नाम को उसने बयान किया था कि गर्ज का बेटा। गर्ज का बेटा इसको इसलिए टाइटल दिया गया था क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था जो हर वक्त अपने जोश में और अपनी ताकत में और अपने उस माइंड में रहता था कि जिससे वो शख्स सिर्फ और सिर्फ जाहिर होता था कि ये झगड़ालू है, ये लड़ाका है, और इससे इसी तरह की बातें होती रहती थी। क्योंकि एक जगह पर वाकया मिलता है कि एक गांव में जब जाते हैं यीशु मसीह, तो वहां के लोगों ने यीशु मसीह को अच्छे से वेलकम नहीं किया। तो याकूब और यूहन्ना, इसका भाई याकूब और यूहन्ना, ये दोनों खुदावंद यीशु मसीह से कहने लगे कि खुदावंद अगर तू कहे तो यहाँ पर आग नाज़िल करे। जिस बात के लिए खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है, वो जज्बा भी रखता था, वो खुदावंद की हजूरी में वफादारी भी रखता था, लेकिन खुदावंद चाहता था कि ये हम्बल हो जाए। और वो थी खुदावंद की मोहब्बत, जिस मोहब्बत में लाकर खुदावंद ने इसे इस लायक बनाया। ये ऐसे ही मकाशफा की किताब नहीं लिखी गई। मकाशफा की किताब लिखने के पीछे जो सा पर्पस है, वो है खुदावंद यीशु मसीह रूह में हर एक बात को कलाम के वसीला से इसके साथ शेयर करते, और रूह ने ये कलाम सारा लिखवाया है। आज हम देखते हैं कि इन बातों को अगरचे हम आगे बढ़ते हैं, तो इमरान साहब यहां से पढ़े जी, आगे जी। इनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दे, ताकि उनकी नबूवत के जमाना में पानी न बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डाले, और जितनी दफा चाहे जमीन पर हर तरह की आफत लाए। ये खुदावंद ने इन्हें ये इख्तियार दिया कि वो जितनी मर्तबा चाहे जमीन पर क्या लाए? आफत लाए। लेकिन खुदा इनको उस वक्त में इस जमीन पर भेजेगा जब यीशु मसीह एक मर्तबा आएंगे, कलीसिया उठाई जाएगी, कलीसिया आसमान पर चले जाएगी, उसके बाद ये दो गवाह आएंगे, और वो लोग जो बचे होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल
नहीं किया होगा, ये उनके साथ कलाम करेंगे, इनके साथ नबूवती कलाम करेंगे। वो कलाम की बातें खुदा के कलाम में से उन्हें सिखाएंगे। एलिया और यूहन्ना का आना इसलिए जरूरी है कि वो 7 साल कंप्लीट होंगे। 3.5 साल 42 महीने 3.5 साल कंप्लीट होते हैं, और फिर 42 महीने 3.5 साल अबलीस को दिए जाएंगे। और वो जब आजाद होगा, गड़े में से निकलेगा, तो उस वक्त वो इन दोनों को कत्ल करेगा। ये कत्ल होंगे उस जगह पर जिस जगह पर यीशु मसीह को मसलूब किया गया, और 3.5 दिन तक इनकी लाशें वहां पर पड़ी रहेंगी और कोई भी इन्हें उठाएगा नहीं। और उसके बाद ये जिंदा किए जाएंगे और खुदा इन्हें जिंदा करेगा। दोबारा से ये जिंदा होंगे और फिर दोबारा से ये आसमान पर जाएंगे। और जब आसमान पर जाएंगे तो पीछे का हाल थोड़ा सा हम देखेंगे, फिर आगे बात करते हैं। 7 आयत से पढ़े। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे, यस, तो वो हैवान जो अथाह गढ़े से निकलेगा, यस, उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा, उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा, गालिब आएगा और उनको मार उनको मार डालेगा, डालेगा। और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी, उनकी लाशें उस बड़े शहर में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है। जी आगे। जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था, जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। हुआ था। जी आगे। और उम्मतों और कबीलों और अहले जुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, जी आगे। और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे, यस, और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, यस, क्योंकि इन दोनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई, यस, और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। यस, भाविया। और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए, और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। यस, फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया, और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, यस, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे, और बाकी डर गए, और आसमान के खुदा की तमजीद की। खुदा की तमजीद हो। ये वक्त जो सा हम सुन रहे हैं ना, ये एज इट इज ऐसा ही होगा। और ये मसीह के आने के बाद का वक्त है, उठाए जाने के बाद का वक्त है। आप ये बातों पर गौर कर सकते हैं कि अगरचे मसीह के आने से हम जो कलीसिया जमीन पर इस वक्त मौजूद है, ये कहां पर जाएगी? ये आसमान पर उठाई जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह हमें ये पैगाम इस पैगाम में से देना चाहते हैं कि जिस तरह वो अपने रसूलों की, अपने लोगों की, वो जिनके मुंह में उसने कलाम रखा है, वो जो उनसे लोगों को कलाम सुनाते हैं, वो उनके लोग, खुदा के लोग, वो अगरचे मर भी जाए और खुदा उनकी लाशों का भी लिहाज रखता है। वो 3.5 दिन तक वहां पर पड़ी रही और किसी ने उनको कब्र में उठाकर नहीं रखा, क्योंकि किसका दौर चल रहा था? अबलीस का। अबलीस का दौर, हर दौर अबलीस का
हर इंसान के लिए खतरनाक है। आज का दौर भी खतरनाक है। आज भी लोग जो गाफिल हैं, जो सोए हुए हैं, जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, जिनकी कोई अपनी ऐसी एक्टिविटीज है नहीं है कि वो खुदा के कलाम को, उसकी प्रस्तिश को, उसकी इबादत को ऑनर करे। वो अपने मुआमलात में, दुनिया के मुआमलात में अपनी कमजोरियों में फंसे हुए हैं, धंसे हुए, और उनकी आंखें बंद है। और एक वक्त आने वाला है, और वो वक्त है कि जब यीशु मसीह ने बादलों में, जैसे यूहन्ना और एलिया, उस वक्त जिस वक्त खुदा ने उनमें रूह डाला और वो जिंदा हो गए, और जब वो जिंदा हो गए तो बादलों पर उठाए गए। ये एग्जाम्पल ऐसे ही एग्जाम्पल थोड़ी है हमारी जिंदगी में। ये खुदा का कलाम है, इसने पूरा होना है, ये सच है, ये बरहक है, इसको कोई टाल नहीं सकता और ना ये टाल। तो मुझे बताएं कि जो से गाफिल है, तो वो क्या उस वक्त आसमान पर जा सकते हैं? उसकी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? जिन चीजों की मुझे इस कलाम सुनाने का कोई वो वाला शौक नहीं कि मेरी कोई बल्ले बल्ले होए जी, मैं बड़ा मुकाशफा जानना। मेरी एक ही सोच है कि किसी तरीके से हमारे अंदर वो समझ पैदा हो जाए कि हमारी निगाहें सिर्फ हमारे यीशु पर लगी रहे, कि जब तक वो आ ना जाए उन बातों को हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। ये जो सी बात मैंने शुरू में कही कि पतरस ने सवाल कर दिया यीशु मसीह से, आए उस बात को सीखें। जिन बातों के लिए हमें वक्त दरकार है और वो बातें हम सीख लेंगे उस वक्त में अपनी जिंदगी में, तो शायद हम भी बच जाएंगे और हम अपने साथ वाले को या अपने खानदान में से या अपने बच्चों को अपने साथ बचा सकेंगे। जिस बात के लिए मेरे अंदर नहीं ना किसी बात की समझ, नॉलेज, तो फिर मैं दूसरे को भी समझा नहीं सकता। यूहन्ना के लिए 21 बाब में, यूहन्ना की अंजील 21 बाब और उसके पत्रस के बयान जहां पर हमने सुनने हैं वो है 20 आयत में। यहां पर लिखा है कि पत्रस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था कि ऐ खुदावंद तेरा पकड़वाने वाला कौन है। ये वही जब्दी का बेटा यूहन्ना है जिसने यीशु मसीह को ये बात उस वक्त पूछी जब वो 12 शागिर्दों के साथ खाना। और यहां पर पतरस ने उससे ये क्वेश्चन किया कि पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। 21 आयत में लिखा है कि पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद इसका क्या हाल होगा, इसका क्या हाल होगा। जी 22 आयत में यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इस बात को आगे जाके लूका ने भी रिकॉर्ड किया है। ये वो बयान है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लोग गलत प्रीच कर देते हैं। बात इतो तिकर भी कह देंगे, मीडिया पे भी ये रिकॉर्डिंग है कि यूहन्ना जिससे यीशु मोहब्बत रखता था वो अभी तक जिंदा है।
वो अभी तक वो मरिया ही नहीं, क्योंकि उसको खुदावंद ने कहा कि अगरचे ये मेरे पतरस को जवाब क्या मिल रहा है कि ये मेरे आने तक यही तो यहीं रहे, हैं? तो तुझे इससे क्या? तो वो बात जो उनसे पतरस को सुनने को मिली, वो उसका गलत मतलब और तशरीह बयान करते हैं। ये हो सकता है कि यूहन्ना अभी तक जिंदा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। इसको लूका में देखते हैं तो लूका में इसको बयान किया गया है 9 बाब की 27 आयत में, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना ले मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। दलील, ठोस दलील ये देते हैं, इस आयत को ठोस दलील बनाकर पेश करते हैं कि यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे, और यीशु मसीह कभी भी झूठ बोलते नहीं। इस बात को कबूल करते हैं कि यीशु मसीह इसको झूठ समझते बोलते नहीं है। यीशु मसीह ने वो है कि यीशु मसीह में मौत का कोई कॉन्सेप्ट, यीशु मसीह मौत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी। ओ भाई, जब यीशु मसीह लाजर की खबर पर गया तो वहां पर मार्था और मरियम यही तो रो रही है उसके सामने कि अगर तू यहां पर होता तो हमारा भाई ना मरता। नजर चिते मर गया, डेथ हो गई उसकी, लेकिन यीशु मसीह की नजर में वो मरा। यीशु मसीह ने एक दफा भी मुंह से निकाला था कि लाजर मर गया, लेकिन अगर तू ईमान रखे तो खुदा का जलाल देखेगी। मरा नहीं बल्कि सोता है। मसीह में अब जो मर जाते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। यीशु मसीह कश्ती में क्या सुना, सोया हुआ शागिर्द, तूफान आ गया, वो तूफान देख रहे हैं, यीशु मसीह और कुछ देख रहा था। यीशु मसीह सोया जरूर, लेकिन नींद में नहीं था। अखा बंद कर लो तो वो सोया लगता जरूर है, लेकिन वो नींद में नहीं। और अगर नींद में नहीं है इंसान तो फिर इसका मतलब है कि वो जागता है। यीशु मसीह भी जागता है, और यीशु मसीह रूह में हर बात हमें सिखा रहा है, क्योंकि उसके गवाह आएंगे। वो 3.5 साल तक मुनादी करेंगे, वो नबूवत को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि जो कुछ उसमें से ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो शहर, मुकद्दस शहर से वो काम शुरू होगा, और उसको एक गज दिया गया कि नापो इसको। अदालत कहां से होनी है? वो अदालत खुदा के घर से, मुकद्दसों ही से अदालत शुरू होनी है। फिर उसके बाद गैर कौमों तक वो अदालत पहुंचनी है, ताकि वो लोग जो उनसे मुकद्दस पाक अपने आप को हर तरह से काबिले गौर खुदा की हजूरी में रखते हैं, वो खुदा के लायक ठहरे, और खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो वो बादलों पर उठाए जाए। हालेलुया। इस बात को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं कि यूहन्ना आरिफ खुदावंद यीशु मसीह का वो शख्स था जिसे यीशु मसीह अजीज रखता था। गर्ज का बेटा उसे इसीलिए कहा गया था क्योंकि उसमें बड़ी तूफानी हरकतें थी। और जब यीशु मसीह ने उसे अपने साथ चुन लिया तो 3 साल तक यीशु मसीह के साथ वो रहा। फिर उसने बाप के उस कारोबार को भी छोड़ दिया, वो मच्छियां पकड़ने के बजाय वो फिर आदमगीर बन गया। आज मुझे और आपको भी कॉल है इस बात की कि हम भी अपनी वो जिंदगी छोड़कर
जिस जिंदगी में हम सिर्फ अपने उन कामों को लेकर चल रहे हैं, हम हकीकी जिंदगी की तरफ आए और यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा मानते हुए उसके लिए हम खुदा का कलाम लेकर आगे बढ़े। God bless you.